ठीक है सर, ठीक है सर, वास्तव ठीक है सर, बस सही है, ओके सर। अच्छा सर, जी सर, अब आप बोले जी। अब जी सर। so let we start with from beginning. सर स्लाइड शो लगा ले, स्लाइड शो सर। स्लाइड शो तो है, नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है मुझे। दोबारा आप इन हो जाओ, शायद तब हो जाएगा। दोबारा इन हो जाओ, मैं तो स्लाइड शेयर उसमें है। अब जिनको नहीं आ रहा है वो लास्ट टाइम की तरह हो गया सर, हो गया, थैंक यू सर, हो गया। चलिए, in your syllabus what has been shared with me by Dr. Siddiqullah Sahib, that is anti-inflammatory drugs. And regarding anti-inflammatory drugs, so today I was about to teach you antibiotics, but once I cast a bird's eye view on your syllabus, then I was of the opinion that let me share with you tell you some more about anti-inflammatory drugs, because this is linked with the previous lecture. The basic structure and the schemata is almost the same as I discussed in the previous lecture. So that is why I opted for these drugs, this class of drugs rather than. So there is an anti-inflammatory drugs, but the caption tells you, this caption tells you non-steroidal anti-inflammatory drugs. So I would request you to consider this to the extent of anti-inflammatory drugs. I will not be teaching you about non-steroidal anti-inflammatory drugs, but I will be teaching you almost all type of anti-inflammatory drugs and referring. There is one terminology in the market, you see, analgesics, and the other terminology is antipyretic. Who is coughing, yeah? Who is coughing? And then there's a let me mute you all, because it is going to create a problem for me. So mute all. You will listen me and I will not listen you. And then if you need to ask some questions, so you must unmute yourself first. There is analgesics, there is antipyretic, and there is anti-inflammatory. What you can say, there is anti-inflammatory. So in your syllabus, there is a title, anti-inflammatory drugs. But in ophthalmology, you cannot tell the patient that I am going to treat you with anti-inflammatory drugs, and that you should not have apyrexia. so I will take the support to teach you side by side that how antipyretics and how analgesics. Analgesics are usually called as painkiller. They are called as painkiller, and mean to relieve the pain. Antipyretic, pyrexia, it is related to pyrexia. So antipyretics mean drugs that counteract pyrexia, increase in body temperature, जो मेमर्स का हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, ±1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रेंज में है, और अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर, और कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया कहते हैं. And in both the cases, the metabolism is affected, and that is why you have to manage your patient in the ward sometime. If infection is there, so body temperature is increased. So you are, yes, in general practice, you are confined to anti-inflammatory drugs. But what is inflammation? You are quite familiar with that. So I'm not going to carry you to inflammation. But in inflammation, you see, you think that there is a increase in the blood supply to that region. There is erythema. There is what you can say chemotaxis, margination. There is a redness and hardness. You see, if you recall the 5 to 6 key symptoms of inflammation, and at the end there is a functional loss. I mean, loss of function of that particular organ or that particular body. So you have to manage the inflammation. And if you have to manage the inflammation, then you have to give certain drugs that counteract inflammation. Though inflammation is one of the physiological phenomena, keep in mind this is one of the physiological phenomena. But once if it is not within the limits of the body,
then the body's defense mechanism fails. So your patient may come across with secondary bacterial infection, viral infection, or fungal infection, or as the case may be. And sometimes if the culture sensitivity report doesn't tell you that nothing has been found, so no bacteria have been isolated, so the physician then use the word aseptic, you see, suspected, तो उससे पहले वो एक लाहिका साबिका लगा देते हैं और कहते हैं कि aseptic arthritis. Nevertheless, बात दूसरी तरफ जा रही है. So what are analgesics? Analgesics are broadly divided into narcotic analgesics, non-narcotic analgesics, and NSAIDs. Remember, analgesics, a drug may have analgesic activity. Remember, a drug may have antipyretic activity, and a drug may have anti-inflammatory activity. So, you know what counts? Then the matter is that the how much quantity of the amount of drug is being given, that counts, and how frequently that drug is given. So thus the dosage schedule is important. The dosage schedule is important. So you will learn. So you have to learn the doses. For example, aspirin. If I give you an example of, in the last lecture, I gave you the example of aspirin. That aspirin is going as a prototype in NSAID drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. But the dose of aspirin, what you can say as analgesic is something else, as antipyretic is something else, as anti-inflammatory is something else. For example, is in rheumatic disorders and rheumatoid arthritis, the dose, especially that condition, is you have to give it in grams, not in 300 milligram or 600 milligram. You have to give it in gram, 1 gram and above, and that is called as till कि मरीज के जो कान है वो बजना शुरू हो जाए. This is called ringing in the ear. Ringing in the ears mean एस्पिरिन का वो डोज जिसमें उसके कान बजना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं anti-inflammatory dose. So the antipyretic dose of a drug may be different, the analgesic dose of a drug may be different, and it may be the same. Remember, it may be the same as well. If we talk about what you can say, these dose and dosimetry. So you have a dose जो है वो recall से है, आपने रटा करना है, तो लिहाजा डोज में वो नहीं, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा. Therefore, जब एनालिसिस की हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दो हमने इंफ्लेमेटरी पे फोकस करना है, तो NSAIDs जो है नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी ड्रग, प्रोटोटाइप ड्रग जो है, एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप. Can somebody tell me what is prototype? Shamas? Prototype. जी हेलो, इसका नेट कमजोर है सर, इसकी तरफ. अच्छा, प्रोटोटाइप हम उसको कहते हैं, प्रोटोटाइप जो पूरे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोटोटाइप. रिमेंबर, एक और टर्मिनोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्रग. प्रोड्रग में है कि पहले ये एक्टिव नहीं है, ये मेटाबोलाइज होगा. ये क्या होगा? मेटाबोलाइज्ड होगा. और जब ये मेटाबोलाइज्ड होगा तो फिर जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव फॉर्म में. लिहाजा द ड्रग इन प्रोड्रग, ड्रग जो है बिगिनिंग में एक्टिव नहीं है. सो बिगिनिंग में ये एक्टिव नहीं है, बिगिनिंग में जवाब देते हैं, आपके बॉडी के अंदर जाके फिर ये एक्टिव हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मिसाल देता हूँ आपको, बेक एम्पिसिलिन. ये बेक एम्पिसिलिन जो है, जो प्रेमब्रिटन के नाम से मार्केट में अवेलेबल था, ये GIT में जाके ये कन्वर्ट होता है टू एम्पिसिलिन. लिहाजा ये बेक एम्पिसिलिन जो है ये इनएक्टिव है. एम्पिसिलिन एक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, एंटीबायोटिक है. हम आपको एंटीबायोटिक में फिर पढ़ाएंगे. लिहाजा आज हमने नई बातें की. एक बात ये की कि प्रोड्रग क्या है,
दूसरी बात की कि प्रोटोड्रग क्या है, दूसरी बात की कि प्रोड्रग क्या है। प्रोड्रग जो है वो ड्रग बिगिनिंग में एक्टिव नहीं होता, जब आप देते हैं आपके बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगा। ये मेटाबॉलिज्म आपके मुंह से भी स्टार्ट हो सकती है और ये आपके लिवर में क्लासिकल साइड इज मेटाबॉलिज्म। और प्रोड्रग जो है वो पूरे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो द फार्माकोलॉजिस्ट आपको क्या पढ़ाएगा, वो आपको एस्पिरिन की फार्माकोलॉजी पढ़ाएगा। ये ज़हन में बात यार, इज बिकॉज एस्पिरिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग। नार्कोटिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो मॉर्फिन है। क्या है? मॉर्फिन, मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो गोले लाला है, गोले लाला, इसके जो कैप्सूल होते हैं उससे हासिल किया जाता है। मॉर्फिन इज नार्कोटिक एनालिसिस। और नॉन नार्कोटिक एनालिसिस जो है इनमें फिर आपका आता है पैरासीटामोल, जो हमने कल बात की थी, पैरासीटामोल। इट इज द पैरासीटामोल के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करके, रिमेंबर इसका एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं, लेकिन 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 इसमें एडिक्शन भी नहीं है। और ये जो वो क्या कहते हैं कि जो इन फ्रूट पाथवे है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन बाहर से जब सेंसरी पाथवे ऊपर जाती है तो वहां पर जो है ये उस पाथवे को इनहिबिट करते हैं, एलिविएट द थ्रेशोल्ड। और फिर जो है पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस है। लिहाजा 3 किस्म के एनाल्जेसिस की क्लासिफिकेशन है: NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो मॉर्फिन सल्फेट है, ऑप्थेल्मोलॉजी में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, और NSAIDs का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे डुफ्लुक्विनासिन के ड्रॉप्स है, सस्पेंशन वगैरह अवेलेबल है। और नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस इसका भी बहुत ज्यादा हर एक वार्ड में इसका इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल का। और इस पे हमने तो ये एक जनरल बात थी आप लोगों की अवेयरनेस समझाने के लिए कि एनाल्जेसिक्स और एक ड्रग जो है एनाल्जेसिक्स मुख्तलिफ सिमिलर डोज में एनाल्जेसिस भी हो सकते हैं, एंटीपायरेटिक भी हो सकते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटीपायरेटिक मीन की बॉडी टेम्परेचर को वो कम करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अब वो कल की लेक्चर पे हम जरा जाते हैं। कल का जो लेक्चर हमने दे दिया, इफ यू रिकॉल दैट, कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी कि इराकिडोनिक एसिड इज देयर, और जब इराकिडोनिक एसिड है तो फिर ये वहां पे हमने यहाँ पे हमने साइक्लोऑक्सीजिनेजेस लिखे थे। इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, वहां पे हमने क्या लिखा था? साइक्लोऑक्सीजिनेजेस लिखे थे। लेकिन आज मैंने उसमें एक नई एडिशन की, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड द अदर इज साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। ये इसलिए की कि हमने आपको इल्म जो है, नॉलेज स्लोली ग्रेजुअली देना है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो है वो आपके फ्रेंडली प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, और जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है वो आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं आपके पेपर में। और ये और फिर सवाल ये है कि ये जो कौन से इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो पेन और पायरेक्सिया से रिलेटेड है, हाइपरएल्जीसिया से रिलेटेड है जो इंक्रीज इन सेंसेशन है, और प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी जो 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 है वो उसको हम, तो एंडोपेरोक्साइड्स जितने भी है इससे फिर ये आगे बनते हैं, तो इसको हम इसमें हमने। लिहाजा अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट ये कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को ब्लॉक करना है, इसको आपने नहीं ब्लॉक करना, इसको एज सच रहने दे, ताकि ये जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है यहाँ से शुरू होके यहाँ से आ जाए और एंडोपेरोक्साइड बन रहे हैं। ये तो आपने ब्लॉक कर दिया ये वाला रास्ता, लेकिन ये वाला रास्ता आप ब्लॉक न करें, ताकि बदन के लिए जो फ्रेंडली प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं इसको आप बना ले। ये कल हमने लेक्चर बिफोर में भी हमने बात की थी। अब बहुत जरूरी ये है कि आपको इनकी उसका पता हो कि इनका क्या क्या काम है। तो ये जो नीचे जितने भी काम है ये हमने दिए हुए, ताकि आपका नॉलेज जो है ना रिफ्रेश हो सके। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. That's good. What is important? Important to understand is, yes. Important to understand is that you must know which prostaglandin are important. For example, if I recall your memory, let me carry you back to another. Take a blank slide. Let me make you blank. For example, this is the outer layer of the cells. This is the outer layer of the cells, and you have been told as that there is biophospholipid layer. And if you find a portion of this, so you can find is like this one. So when stress is there, you give stress to this tissues are cells.
or cells. And once you give stress, we talked about in the previous lecture what are stress and what are stressors. You see, so this stress may be any chemical injury, physical injury, or psychological injury, or as whatever the case is. I don't want to go into detail because that will open a new window. So this will lead to the release of autocoids. Autocoids. What I talked in the previous lecture. Auto means self-limiting, and coids mean limiting. These are material that are synthesized when the body is in need. So they will be prepared in the body at that time when it is needed and will be metabolized and fetched. So in case of eye, which we give you a diagram in the first lecture, you see. So you know there is an outflow mechanism and there is an inflow mechanism. Which drugs goes in the outward mechanism, which go in the inflow mechanism. You can take the support of that slide. But important to understand is that the patency of these cells, the structural of these cells, that is maintained by certain prostaglandins. So certain prostaglandin also maintains the patency in the normal texture and structure of those epithelial cells. Thus, certain prostaglandins are also anti-inflammatory. How they are anti-inflammatory? Because they remodel the cellular integrity, and that is the reason that you can find in ophthalmology different prostaglandins available in different strengths, and they are now nowadays helping you to maintain the integrity of that epithelial and basic structural cells. So and perhaps that is the reason लेटेस्ट स्टडी अमेरिका में हुई थी, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रही है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, तकरीबन 45%। उसके बाद जो है ना इंसेट्स है, ठीक है जी, और उसके बाद अदर सीरीज ऑफ ड्रग्स है। तो बात दूसरी तरफ जा रही है, बट द पॉइंट इज टू टेल यू दैट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्थेल्मोलॉजी एंड हाउ दे वर्क टू मेंटेन द रिमॉडलिंग। जो टिश्यू डैमेज हुई है उसके लिए रिमॉडलिंग करते हैं, बिकॉज some of the prostaglandins are important for the what you can say Walaikum salam. Hello. जी सर, आवाज आ रही है सर? बस ठीक है। तो बीच में किसी का आया तो मैं परेशान हो गया कि यार ओके। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने बार बार क्वेश्चन करनी है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट शुड बी अलर्ट कि हमारे सवाल का जवाब दे दे। So now what is important to understand that we have to only block which particular mechanism, this particular mechanism, and permit the synthesis of friendly prostaglandin. And if you recall your memory, we talked about in the previous lecture that in the vessels, maintenance of the blood vessels, वहां पर certain prostaglandins are important. और अगर वो prostaglandin जो वेसल को डायलेट करते हैं, अगर वो नहीं बनेंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे। जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और यही एक रीजन है कि अक्सर हमारे जो फिजिशियन आजकल हजरात हैं वो सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं, डिजीज को ट्रीट नहीं करते। मेरी बात सुन ले, पुराने जमाने में मेडिकल वार्ड था, वो एमआई को भी डील करता था, वो सब कुछ डील करता था। अब जो कहता है किसी को अगर एमआई हो जाए तो कहते हैं कि भाई आई हैव मैनेज द पेशेंट, नाउ यू कैन कैरी योर पेशेंट टू द वार्ड, और अब इसका चेस्ट का प्रॉब्लम है, चेस्ट से एडमिट हुआ था, उसको एमआई हो गया, लिहाजा हमने मैनेज कर, आप अपने मरीज को वापस ले लो। ये जो डाइकोटमी है और जो डाइवर्जेंस है, इसके बहुत सारे वजूहात है, लेकिन ये जरूरी भी है और जरूरी है भी नहीं, इसलिए कि हमारा सिस्टम अभी इंटीग्रेटेड नहीं है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो तबाही की तरफ जा रहा है, बहरहाल दैट इज अ सेपरेट इशू, बट द पॉइंट इज you should be quite vigilant in different perspective, so you can stop it here। इसीलिए
जो एस्पिरिन है वो यहाँ भी इनहिबिशन करेगा और यहाँ भी करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को भी करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को भी करेगा। लेकिन फ्लर्बिप्रोपेन जो है, फ्लर्बिप्रोपेन अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को इनहिबिट करेगा, और जहां पर हमें प्रेंडिप्लास्टोग्लैंडिन की जरूरत है वो प्रेंडिप्लास्टोग्लैंडिन ये इनहिबिट नहीं करेंगे। लिहाजा आपके मरीज को जिस तरह कल हमने बात की स्टमक का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। लिहाजा ये मोर और लेस कल की रिपीटिशन है और यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया। कल हमने बात की थी कि यहाँ पर 5-लिपोक्सिजीनेज है और ये से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, LTC4, LTD4 और पावरफुल केमोटैक्टिक एजेंट है, ब्रोंकोस्पाज्म भी है, और एस्मा जिनको है तो वो फिर उसमें एस्मा का अटैक एग्रेवेट हो सकता है। लिहाजा जिस मरीज को आपने अगर एस्प्रिन दे दिया, रिमेंबर एस्प्रिन, तो एस्प्रिन आपने यहाँ पे दे दिया तो फिर ये जो शिफ्ट है ये यहाँ से शिफ्ट होगा इसी तरफ, लिहाजा ब्रोंकोस्पाज्म उसमें होगी। तो जिनकी हिस्ट्री एस्मेटिक है उसको आप एस्प्रिन कभी ना दे, उसको आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कभी ना दे। लिहाजा अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, एक ऑप्शन है इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में और आप ऑप्थेल्मोलॉजी में दे रहे हैं और उसमें जो है आपको पता है कि बिगिनिंग में अगर ये कुछ उनको डैमेजेस हो गई है और बिगिनिंग में हम ओरल पे डाल देते हैं और टॉपिकल प्रिपरेशन, और 5 दिन बाद जो है ना ओरल से उसको छोड़ के तो उसे कहें कि 10 दिन तक जो है ना आप ये टॉपिकल प्रिपरेशन दे, तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप जब ओरल पे जाओगे, सिस्टमिक पे जाओगे तो के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा मरीज से हिस्ट्री बहुत जरूरी है कि कहीं उसकी हिस्ट्री तो नहीं है और ब्रोंकोस्पाज्म की हिस्ट्री तो नहीं है, और अगर ब्रोंकोस्पाज्म की हिस्ट्री है तो जिस तरह कल हमने बात की थी फिर स्टेरॉइड देते हैं, वो फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर है तो फिर स्टेरॉइड आप देते हैं और उस वजह से जो है ना फिर आप एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी टॉक्ड अबाउट, और फ्लर्बिप्रोपेन की हमने बात की, वो उसको इनहिबिट कर लेते हैं। रिमेंबर कल हमने बात की थी डक्टस आर्टेरियोटिस की कि ये बहुत जरूरी है जब फीटल सर्कुलेशन होगा 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में, और अक्सर हमारे जो है ना ये वो हजरात ड्रग देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, या लो बैक पेन होता है। अगर आप मेरे चैनल पे गए तो आपको पता लग चुका होगा, लो बैक पेन प्रेगनेंसी के लिए जो है ना अक्सर लोग पूछते हैं, और स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में है और 2nd 3rd प्रेगनेंसी में फिर जो है ना व्हेन द एब्डोमेन बल्जेस आउट, सो लो बैक पेन की शिकायत बहुत ज्यादा होती है और लोग वहां पर जो है ना अक्सर गांव में एक्सेस नहीं होते, तो लिचवीज हजरात फीमेल जो है ना लिचवीज जाते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर, और वो जो है ना फिर उनको अक्सर मैंने देखा है कि वो डिक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। लिहाजा डिक्लोफेनिक सोडियम is not permitted what you can say in pregnancy। लिहाजा आप प्रेगनेंसी अगर आपका मरीज प्रेग्नेंट है तो फिर उसको आप टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन और नेचुरल्स, और वो फिर आप दूसरे जो है ना न स्टेरॉइड दे सकते हैं और न ये दे सकते हैं। लिहाजा राइट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। let we carry you back। थेराप्यूटिक यूजेस एज एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी हमने बात की। साइड इफेक्ट्स जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की नेफ्रोटॉक्सिसिटी और जीआई अपसेट्स है, बिकॉज सम ऑफ द जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो उसको फिर इनहिबिट करेंगे। ये वही लास्ट लेक्चर के थोड़ा सा में कंटिन्यूएशन है। अगर आप इंसेट्स देते हैं तो इंसेट्स क्या करते हैं, वो साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को भी इनहिबिट करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को भी इनहिबिट करते हैं। और जो हमने बात की फिर वही फिनोमेना है, एक मैंने एक दूसरे किताब से पिक्चर लिया है, सो दिस इज मोर और लेस द सेम। ये साइड वाला आपको फिजियोलॉजिकल काम दे रहा है, ये इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई दे रहा है ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो। ये स्लाइड भी मैंने नेट से लिया हुआ है, और जिस तरह हमने लास्ट बात की फॉस्फोलाइपेज स्टेरॉइड इसको इनहिबिट करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज जो है ना साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे 1 और 2 जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की, ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, सिर्फ उल्टे हाथ से उन्होंने बनाया। यहाँ पर लिपोक्सिजिनेसिस है, यहाँ पर ल्यूकोट्राइन थे, और जो पिछले स्लाइड में यहाँ पे थे, लेफ्ट साइड पे थे। लिहाजा इस लेकिन ये स्लाइड मैंने किस पर्पस पर डाला, ये आप कुछ डाला है कि ये जो इंसेट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डिफरेंट इंसेट्स। जो सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइलसिलिक एसिड, एस्पिरिन है, और प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है जिसमें आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, अदर डिक्लोफेनिक सोडियम, इंडोमेथासिन, विनाइल ब्यूटाजोन, सेक्टो है जिसमें ये सिलोक्सिब है। आजकल इनसे एमआई कैरेस जो है ना उनका एनाल्जेसिक एक्टिविटी ज्यादा है,
और इनसे बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट बन गए। ये इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है और पैथोफिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये पिछले स्लाइड की वो है। इन व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कह रहा है कि साइक्लोहेक्सिजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने सिर्फ एक मिसाल यहाँ भी दिया था, और शायद यही रीजन है कि ऑप्थेल्मोलॉजी में हम वो प्रिपरेशन देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, वो नेचुरली है और फिर उसकी रिमॉडलिंग कर लेते हैं और जो डैमेजेस है वो रिकवर कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सिजिनेज 2 जो है वो इन्फ्लेमेटरी है, और दिस इज मोर और लेस प्रीवियस स्लाइड की वो है। इंडिकेशन कहाँ पे दे सकते हैं? इज इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं, और एक्यूट गाउट अटैक में दे सकते हैं, और मेटास्टेटिक बोन जो कैंसर कंडीशन है वहां पे दे सकते हैं टू रिलीव द पेन। पैरालिटिक इलिस में देते हैं, रीनल कोलिक में दे सकते हैं, प्रोरक्सिया जहां पर पेन हो एंटीपायरेटिक एजेंट देते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है ना उस मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और हेडेक और माइग्रेन जिनको है उनकी मैनेजमेंट के लिए देते हैं ऑफ कोर्स इन डिस्मेनोरिया और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। साइड इफेक्ट्स उनके कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा अगर मरीज इस्केमिक है तो बहुत एहतियात के साथ आपने इनसाइड इस्तेमाल करना, ये एक मैसेज है। और जेस्टेशनल जो 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 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो वो इफेक्ट है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, और लिहाजा इट मे एग्रीवेट स्पेशली उन कंडीशन का जिन मरीज को आंसर की हिस्ट्री है, तो उनको आप ओरल इंसाइड्स नहीं दे सकते, ये जहन में बात याद रखें। और अगर आप देंगे भी तो यू हैव टू गिव विद देम एंटी लाइक ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह का सहारा दोगे, ये बहुत जरूरी है। एलर्जी, बाकी उसके जो डिसऑर्डर है साइड इफेक्ट, एस्मा, लिहाजा आप एस्मेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, ये एग्रेवेट कर सकते हैं। और फोटो सेंसिटिविटी भी जो है नेप्रोक्सिन सोडियम से जो है ना फोटो सेंसिटिविटी रिपोर्ट हो गई, लिहाजा आपने वहां पर भी बड़े एहतियात के साथ देना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज दैट। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग माइग्रेन में कैसे हेल्पफुल होते हैं? यस, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग माइग्रेन में कैसे हेल्प होते हैं? तो माइग्रेन में देखें ना, व्हाट इज माइग्रेन शाबाश, मुझे टाइम जो है ना सर वो वो हाफ खत्म सर का होने जो जा पेन रहा होता है। है सर। हाफ सर का पेन होता है, लेकिन उसके ट्रिगरिंग प्रोवोकिंग फैक्टर क्या है? पैथोफिजियोलॉजी, शाबाश, उसमें उसका जवाब है। इसमें सर ये एक नहीं पता होता सर। है, हाँ, इसको कहते हैं थ्रोबिंग और पल्सेटिंग पेन, ठीक है जी। और इसकी मेजर जो काज है वो अक्सर सेंटिलेटिंग लाइट होती है, समझ में यस आई सर। बात? और जब उनकी सेंटिलेटिंग लाइट होती है तो अक्सर ड्यू टू न्यूराइटिस लोग ये कह रहे हैं, और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है माइग्रेन, तो जिसको दर्द शकी का कहते हैं, उसकी वजह से जो है ना ये आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये इसलिए चूंकि वो ड्रग एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं और एनाल्जेसिक्स भी होते हैं। रिमेंबर मोस्टली मैंने पहले लेक्चर में बात की, पहले पोर्शन में बात की कि एंटी एनाल्जेसिक्स भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, स्पेशली इनसाइड्स। लिहाजा ये जो ड्रग्स है ये वहां पे इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि वो जो नर जो फॉर सम हाउ रीजन डैमेज हो गया है, या नर की जो डिमाइलिनेशन हो गई है, फॉर एग्जांपल एक नर है उसका माइलिन शीट होता है, और ये एक माइलिन शीट जो है, सम नर आर माइलिनेटेड एंड सम आर नॉट डिमाइलिनेटेड, नॉट माइलिनेटेड। तो माइलिन जो है ना ये एक इंसुलेशन का काम कर लेता है, और जब ये डिमाइलिनेट हो जाए तो फिर जो है बड़ा इजीली ये नर एक्साइट होता है। जब इजीली ये नर एक्साइट होगा तो फिर जो है ना यू हैव टू स्टेबलाइज दिस नर्व। तो एक तरीका तो उसका जो है कि जो पेन किलर है दे स्टेबलाइजेस द नर्व, जिस तरह नार्कोटिक एनाल्जेसिस है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस है, तो एक तो ये नर्व को स्टेबलाइज कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि उस ड्रग्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एनाल्जेसिक होती है, और वही एनाल्जेसिक जो है वो इसके उसमें हेल्पफुल कर रही है। बिकॉज यू कैन नॉट टेल द ड्रग कि आप मैं आपको मरीज में एडमिनिस्टर करने जा रहा हूँ, आपने सिर्फ एंटी इंफ्लेमेटरी काम करना है और एनाल्जेसिक्स नहीं करना है। अगर आप उस डोज में दे रहे हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तो फिर उसने तीनों काम करना है। इसलिए जो है ना ये आप वो दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स जो है ना, इनकी जो ड्रग्स स्पेशली इंसेट्स जो है उनका एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, और वो डोज जो है ये क्या एंटी इंफ्लेमेटरी, ये माइग्रेन में इसलिए हेल्पफुल है। दे आर जस्ट स्टेबलाइजिंग द नर्व एंड दिस इज देयर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दिस इज देयर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। और नर्व की माइलिनेशन के लिए फिर जो साथ जो है ना वो दूसरा डिकम्प्लेक्सेस भी देते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है।
और आप बी कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा बी कॉम्प्लेक्स है शाबाश जो हेल्पफुल है टू स्टेबलाइज द नर्व? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश। हेलो सर नहीं पता सर। यार ये आपको पता होना चाहिए, ये सर pulmonology बी में तो ये कॉम्प्लेक्स बस यूज करते हैं लेकिन ये नहीं पता। अच्छा, टाइम कम है, मुझे ब्लिंकिंग देर है। एक दूना दूना और 6 दूने 12। हेलो, ये पाना याद रहेगा, पाना विटामिन B1, जी जी विटामिन सर। B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 जो है, दीज आर न्यूरोट्रॉपिक विटामिन। ये क्या है? न्यूरोट्रॉपिक विटामिन। चेंज कर दो सर। गुड, थैंक यू। एक दूना दूना, ठीक है जी, और 6 दूने 12, 2 का पहाड़ा आपको याद रखना चाहिए। तो विटामिन B1, विटामिन B2, B6 और 12 जो है, दीज आर न्यूरोट्रॉपिक विटामिन। ये क्या है? न्यूरोट्रॉपिक विटामिन है, ये जिन बात याद रखें। लिहाजा अपने मरीज को अगर आपने न्यूरोट्रॉपिक विटामिन देना है टू स्टेबलाइज द नर्व और नर्व की इक्विटी सही हो, तो बी कॉम्प्लेक्स में फिर ये याद रखे वो बी कॉम्प्लेक्स आपने देने हैं एज ए न्यूरोट्रॉपिक जिसमें 4 मौजूद हो, 1 दूना दूना 6 दूने 12। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, दिस इज राइबोफ्लेविन एंड B1 इज, जब आप थायमीन लिखते हैं तो पहले एक ड्रा करते हैं, तो मैंने इसको इस तरह याद किया था, ये थायमीन है, ठीक है जी। और जो 6 है ये पैराडॉक्सिन है, 6 को उल्टा करो तो ये P बन जाएगा, एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम पैराडॉक्सिन। इट इज विटामिन B6 which is heme precursor। ये क्या है? heme precursor भी है, और ये गेबा भी बनाते हैं, गेमा एमिनोब्यूटेरिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी बनाते हैं। और ये इनहिबिटरी वो है, ये क्या है? गेमो अम्यूनोब्यूटेरिक एसिड जो है। हेलो हेलो हेलो, यस सर सुन रहे हैं। आवाज आ रही है सर। जब नर्वस सिस्टम होती है ना, नर्वस सिस्टम, तो इसकी 2 है, एक है एक्साइटेटरी पाथवे, excitatory pathway, remember, and the other is inhibitory pathway। इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस है, there is a balance between this। इनहिबिटरी में जो आपका है एक्साइटेटरी, इसमें गेबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है और एक ग्लाइसिन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरे में आपके सारे एसिटाइलकोलिन हो गए, नॉरेपिनेफ्रिन हो गए, ये जितने भी है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। लिहाजा देयर इज अ बैलेंस। अब अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन कमजोर हो जाए तो एक्साइटेटरी का न्यूरोट्रांसमीटर अगर नॉर्मल भी है तो फिर ये गालिब आ जाते हैं। लिहाजा दोनों के दरमियान एक बैलेंस होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक नर्व इनहिबिटरी है, दिस नर्व इज इनहिबिटरी, आई एम ड्राइंग फॉर यू, सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीस टू। और फिर इनके दरमियान जो इंटरलिंक है डेंड्राइट्स का, एक दूसरा और डेंड्राइट है, तो ये जो अदर नर्व्स है ये एक्साइटेटरी है, लिहाजा इनके दरमियान एक लिंक होता है। ये जो है ना, दे आर इंटरन्यूरॉन एज वेल। लिहाजा इनहिबिटरी ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम हो जाए या इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है, मैं आर से लिख लेते हैं, जिसको गेबा रिसेप्टर कहते हैं, गेबा रिसेप्टर्स, और ये कपल है, ये कपल किस चीज के साथ है? ये क्लोराइड आयन क्लोराइड चैनल के साथ है। तो क्लोराइड बाहर है, ये जब अंदर जाएंगे, अंदर भी क्लोराइड है, तो क्लोराइड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो व्हाट वी डू, जब आपका लेट मी राइट फॉर यू हियर, तो जब आपका बिगिनिंग में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये था, और थ्रेशोल्ड ये था, तो अब जब क्लोराइड मजीद अंदर आ जाएगा तो आयन आ गए, सो द इंटीरियर अगेन इज वेरी नेगेटिवली चार्ज, मच मोर। तो -70 से आप आ गए -90 मिलीवोल्ट पे, ठीक है जी, आप -90 मिलीवोल्ट पे आ गए। लिहाजा यहां से जब आप थ्रेशोल्ड पे जाओगे, यहाँ पहले आप यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड पे जा रहे थे, इसके ऊपर करंट है या वोल्टेज है, डेल्टा MV, मिलीवोल्ट करंट है, वोल्टेज है। तो जब आपने मजीद क्लोराइड दे दे तो आप यहां से इधर आ गए। अब पहले आपने यहां से बराबर आपने उनको अपना करंट अब आप यहां से जाओगे। हेलो सर।
सर आवाज नहीं आ रही है सर। यहाँ सर से आपकी आवाज नहीं आ रही। जाओगे, यहाँ से जाओगे तो उस एम्पलीट्यूड का सर आप यहाँ भी आ रहे हैं, मैसेज करो मैसेज। लेकिन you are not touching this, what you can say, this threshold. लिहाजा म्यूजिक की कमी है। जिन मरीजों में नर्व की स्टेबिलिटी कम हो, सर टाइम एंड हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर ले। हेलो मैं होस्ट बन गया, मुझे होस्ट बनाया। सर चले गए तू होस्ट बन गया। ट्रीट कर दो। हाँ ट्रीट इसकी स्वीट रेट पे ही अटकी हुई है। पहले वो लगाओ ना, वो सर फहीम का सलाम लगाओ पहले। वो लगाओ सर हमारा। अरे यहाँ पे सिग्नल का भी मसला है, लेक्चर की सर फहीम सर بسوكم सर आवाज भी नहीं सर आ फहीम रही। का सलाम वो लगाओ, एमएल तो लगाओ। बस बंद करो सर, चले गया दोबारा ना ज्वाइन कर ले, खत्म हो गई मीटिंग बस है। तो वो लगाओ एमएल, टाइम खत्मी की शाह। वालेकुम सलाम। सर तो दोबारा ज्वाइन को हाँ